Okay, now look at here. Please see the syntax of natural join. मैंने क्या बताया था पिछले क्लास में? मैंने ये बताया था कि नेचुरल ज्वाइन क्या होता है कि दो टेबल्स के बीच में ज्वाइनिंग तो होगा, लेकिन जहां कोई फील्ड डुप्लीकेट होने लगेगा, डबल होगा, उसको क्या करेगा? ये रोक देगा। अर्थात कि दो टेबल का ज्वाइनिंग भी होगा, लेकिन कोई फील्ड क्या होगा? इटरेटिव नहीं होगा। ठीक है, कोई फील्ड क्या होगा? इटरेटिव नहीं होगा। क्लियर? कोर्स नेम एंड कोर्स आईडी। सपोज लुक एट, जो मैंने आपको बताया कि सर सिंटेक्स हमारा कैसे काम करता है कि इट एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम ऑल द टेबल्स, इट एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम ऑल द टेबल्स, ओके, कंटेनिंग नो डुप्लीकेट फील्ड्स। अर्थात कि सारे टेबल से ये डाटा का कलेक्शन करेगा। लेकिन अभी हमने आपको बताया था क्या कि दो टेबल के बीच में रिलेशन तब होता है जब कोई फील्ड क्या होता है? कॉमन होता है। और यहाँ पे देखिए कॉमन फील्ड हमारा क्या है? रोल है। ओके, सपोज रोल नंबर 101, नेम के और फोन नंबर 123, 105 नेम पीके, ओके, 321, 112 suppose name SK, phone number 456 and so on. Here course what BCA and 105 is what doing. This person is pursuing Bachelor of Engineering BE, okay, and course ID BC1, BC2, here 120, okay, this candidate is pursuing MTech, okay, no problem, but MT1, clear? Now look at here, I'm going to perform what? Natural join. Natural join में मैंने क्या बताया आपको? मैंने ये बताया था कि दो टेबल जो हमारे पास हैं, ये दोनों टेबल से क्या करेगा? डाटा तो एक्सट्रैक्ट करेगा ही करेगा, लेकिन जो हमारा रिजल्टिंग टेबल होगा उसमें डुप्लीकेट फील्ड नहीं होगा। उसमें क्या होगा? डुप्लीकेट फील्ड्स नहीं होंगे। ये है हमारा क्या? नेचुरल ज्वाइन। ठीक है, नाउ शेयर। अब इस सिंटेक्स का अगर हम आउटपुट देखना चाहें, सपोज आई वांट टू सेलेक्ट व्हाट? I want to select each and everything. I want to select all from. Now look at here example. This is a student. Suppose my S2 table name is what? S2. Now look at here. This is an example. Note it down immediately. A student, natural join, and my second table name is what? Course. Okay. So you see here we have three fields in this, but the roll number is common in both. Okay, so what will be the possible fields of my resulting table? Now look at here, my resulting table is going to contain the following fields. So first one is what? Raw. So have you noted it? Have you noted the query? Keshav, have you noted the query? Okay. Now I'm going to raise it. Now look at here. So resulting table will contain what? Roll, your name, phone, course name, and CID. Okay. So, sir, our resulting table will contain the following fields like this way. All data from all the tables. Now, whether it is matching or non-matching, it doesn't matter.
मैंने क्या बताया कि ये डेटा मैचिंग है या अनमैचिंग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये क्या होगा, ये सारे डेटा को क्या करेगा, आपके सामने डिस्प्ले करेगा, ठीक है। फोन 1 2 3, now you see here the roll number field is going to be duplicated, or because it is present in both the tables, so it has been one field has been collapsed, okay। अर्थात दोनों टेबल्स में जो कॉमन फील्ड होगा उसमें से एक लिया जाएगा, और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि यहाँ रॉ और रॉ दोनों में क्या है, कॉमन हो रहा है, इसलिए कोई एक रोल नंबर का कॉलम आपके पास रहेगा, ओके। कोर्स नेम सपोज BCA and course ID BC1, okay, course ID BC1, again come to the point, next 105, name PK, phone number 321, course BC2, और सॉरी BE कर दिया जाए, BTech और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के लिए B2, ओके, नाउ BE2 एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि जो रिजल्टिंग टेबल है इसमें सारे डेटा होंगे हमारे पास। अब देखिए, अभी जो डेटा मैंने लिखा है वो क्या है, मैचिंग डेटा था ना। यहाँ पे देखिए रोल नंबर 101, जहां भी रोल नंबर 101, अर्थात बोथ टपल्स आर मैचिंग, here 105 both tuples are matching, okay। now look at here 1 on 12, okay, name SK, what phone number is 456, and the resulting table is nothing, okay। so it's going to be empty, okay। so by this way you will see there. Next one is 120, from this table name phone number is unavailable, okay, course name MTech, so course name MTech is here, and MT1, course ID MT1, okay। so by this way you can see that whatever the data was present, okay, so in this way your resulting table will display the information, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या होता है कि नेचुरल ज्वाइन, सीधी सी बात है कि नेचुरल ज्वाइन एक्सट्रैक्ट्स डेटा फ्रॉम ऑल द टेबल्स वेदर इट इज मैचिंग और अनमैचिंग, अर्थात इन दोनों में डेटा मैचिंग है या अनमैचिंग है कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारे डेटा को डिस्प्ले किया जाएगा। सिर्फ इसमें एक ही बात होगी कि जो फील्ड्स डुप्लीकेट हो रहा था उसमें से एक फील्ड लिया जाएगा, दूसरे फील्ड के आवश्यकता यहाँ पे नहीं होगी, अर्थात उसको डुप्लीकेट फील्ड एक्सेप्ट नहीं करता है बस, ओके। एनी डाउट केशव जी, यू कैन आस्क। नहीं है। Okay, now we are going to learn about non-ANSI format join, okay। so write about non-ANSI format join, okay। next write about non-ANSI format, we completed ANSI format join just, हम लोगों ने भी जस्ट क्या किया कि जितने भी नॉन ANSI फॉर्मेट ज्वाइन थे उसको हम लोगों ने पढ़ा। क्या क्या था, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन में 3 ज्वाइन हम लोगों ने पढ़ा होगा, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन एंड फुल आउटर ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन एंड नेचुरल ज्वाइन, ठीक है। सो these all are the member of ANSI format join. Now we are going to discuss about non-ANSI format join. Now look at here, हमने आपको क्या बताया था, नॉन ANSI फॉर्मेट ज्वाइन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग अभी कर रहे थे, जो ज्वाइन कर रहे थे वो ज्वाइन क्या था, ऑन कीवर्ड के बेसिस पे था। और यहाँ पे क्या होगा, ANSI फॉर्मेट ज्वाइन क्या होता है, नॉन ANSI फॉर्मेट ज्वाइन क्या होगा, वेयर कीवर्ड के आधार पे हम लोग करते हैं, ठीक है। क्लियर? याद है जो लिखा था हम लोगों ने? नहीं तो फिर से लिख लीजिए, तो आप फिर से लिख लीजिए, इसमें एक लाइन का तो है, ज्यादा कोई टेंशन की बात है नहीं।
इट joins tables on yeah tables with where कीवर्ड। ठीक है, on और where, बस on लग गया तो ANSI और where लग गया तो नॉन ANSI। ठीक है, इट ज्वाइंस टेबल्स विद where कीवर्ड, अर्थात कि ये where कीवर्ड के साथ क्या करता है, हम लोगों को ज्वाइन कराने का ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जो कि ओल्ड ट्रेडिशन में ऐसा ही चलता था और आज भी हम लोग ऐसा ही काम करते हैं। ठीक है, और उसके बाद वेयर कीवर्ड के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, कंडीशन। ठीक है, कीवर्ड एंड कंडीशन। ठीक है, जो कंडीशन हम लोग को देना हो उसके बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं। इसमें मैंने बताया आपको सेल्फ ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन और नॉन इक्वी ज्वाइन। लुक एट हियर, इसमें क्या था, टाइप्स ऑफ नॉन ANSI फॉर्मेट ज्वाइन में मैंने क्या बताया था, सेल्फ ज्वाइन, दूसरा था इक्वी ज्वाइन, और तीसरा है हमारा क्या, नॉन इक्वी ज्वाइन। ओके, नॉन इक्वी ज्वाइन, क्लियर। तो ये तीन तरह के हमारे पास क्या होते हैं, नॉन ANSI फॉर्मेट ज्वाइन होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सर ये सेल्फ ज्वाइन क्या होता है। सर नाम से क्या लगता है, नाम को सुनने के बाद आपको ऐसा प्रतीत होता है सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ मतलब एक टेबल जो खुद से अपने आप को ज्वाइन करेगा, उसी को तो कहते हैं कि सर हम लोग सेल्फ ज्वाइन कहते हैं। क्लियर, सेल्फ ज्वाइन व्हाट, ज्वाइन बाय इटसेल्फ। ओके, so write about it. Its name suggests that joining a table by itself, अब एक टेबल को उसी के टेबल से, उसी टेबल को उसी क्या करेंगे, खुद से ही ज्वाइन कर देंगे, जोड़ देंगे, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, सेल्फ ज्वाइन कहते हैं। तो ज्वाइनिंग अ टेबल बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड, बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड व्हाट, सेल्फ ज्वाइन। सर नाम से क्लियर है, सेल्फ ज्वाइन मतलब एक टेबल अपने आप से ही जुड़ जाएगा, तो ये क्या है हमारा, क्या, सेल्फ ज्वाइन। उसके बाद क्या कहता है कि सर सेल्फ ज्वाइन के लिए हमें एलियास क्रिएट करने की आवश्यकता है। नोट, हमने पहले भी करके दिखाया था, एलियास का मतलब अनदर नेम होता है। ठीक है, एलियास मस्ट बी क्रिएटेड, इसके बिना काम नहीं चलेगा सर। यहाँ पे सेल्फ ज्वाइन में एलियास क्रिएट करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो एलियास मस्ट बी क्रिएटेड, एलियास समझ रहे हैं ना केशव, अनदर नेम। ओके, हमने बताया तो अब क्या, जैसे अब आपको हम, आपका नाम है पूरा केशव कुमार, मैं आपको क्या 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 बुलाता हूँ, तो के इज व्हाट, एलियास ऑफ मिस्टर केशव कुमार। ओके, एलियास मस्ट बी क्रिएटेड, तो बिना एलियास के ये काम नहीं करेगा यहाँ पे, इसलिए एलियास का क्रिएशन कंपल्सरी है सर हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहा कि भाई, नेक्स्ट जो बात इसमें आती है कि ये सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया कि सेल्फ ज्वाइन है ना, तो ये सिंगल टेबल पे ही परफॉर्म होता है। ओके, सो राइट अबाउट इट, इट इज परफॉर्म्ड, सेल्फ ज्वाइन ऑपरेशन जो होगा परफॉर्म किस पे किया जाएगा, सेल्फ ज्वाइन ऑपरेशन किस पे किया जाएगा, इट इज परफॉर्म्ड ऑन अ सिंगल टेबल। ओके भाई, ये ऐसा मत सोच लेना कि दूसरे टेबल को भी इस्तेमाल करने लगना इसमें, नहीं। तो आपको मैंने क्या बताया कि यह सिंगल टेबल पे ही परफॉर्म होगा, सेल्फ ज्वाइन। इसलिए एक ही टेबल हम लोग यहाँ पे बनाएंगे और फिर वहां उसी टेबल के डाटा को उसी से कैसे हम लोग ज्वाइन करके देखते हैं, कैसे लिंक करते हैं, वो देखना है हम लोग। ओके, तो इट इज परफॉर्म्ड ऑन अ सिंगल टेबल, अर्थात एक ही टेबल हमारे पास होगा और उसी टेबल का हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे ज्वाइन ऑपरेशन को करने के लिए। ठीक है,
Okay, now should I raise it? हाँ सर। क्या मिटा दूं इसको कैसे? हाँ ओके, तो ये है क्या हमारा सेल्फ ज्वाइन। अभी हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर सिंटैक्स देखेंगे हाउ डज इट वर्क, कैसे काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग योरसेल्फ, वे अब कहता है कि नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हेयर वी कंपेयर, here we compare the value of, here we compare the value of, the value of we compare a column values, okay, where we compare the value of a column within the same table, अर्थात क्योंकि टेबल तो हमारे पास एक ही है और जब एक टेबल है तो उसी टेबल के अंदर में क्या करना है, हमें वैल्यूज का कंपैरिजन करना है। अब सपोज कीजिए कि हम अपने एम्प्लॉय से उस एम्प्लॉय का डिटेल जानना चाहता है जिसकी सैलरी केशव के सैलरी के बराबर है। ओके, सपोज I have an employee table and I want to extract the name of all those staff who are getting salary equal to the salary of Keshav। क्लियर ना? तो मतलब क्या हुआ कि अगर एक एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय टेबल के अंदर में केशव नाम का एक एम्प्लॉय है, मैं ये जानना चाहता हूँ केशव को जितनी सैलरी मिलती है उतनी सैलरी और किस किस को मिलती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक कंडीशन हमारे लिए होगा। हम यहाँ पे करेंगे क्या, हम केशव की सैलरी से ही तो अपने फील्ड के सारे सैलरी को कंपेयर करेंगे और जो इक्वल होगा हम समझ जाएंगे क्या कि ये क्या है कि केशव के इक्विवेलेंट सैलरी प्राप्त करने वाला एम्प्लॉय है। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, उस टाइप की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो ये क्या है, सिंपल कंडीशन है, हम लोग इसके बारे में थोड़ा देखें। ठीक है, तो हेयर वी कंपेयर द वैल्यू ऑफ ए कॉलम विद इन द सेम टेबल। ये बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर केशव? ये बात समझ में आई? हाँ सर जी। ओके, जैसे मैंने ये भी कहा कि भाई हमारे स्टूडेंट नाम का जो टेबल है, सपोज कीजिए कि जितना मार्क्स पीके को आया उतना मार्क्स और किस किस कैंडिडेट को आया है जो कि सेकंड पोजीशन पे या फर्स्ट पोजीशन पे है। तो दैट कंपैरिजन इज कॉल्ड व्हाट, दैट कंपैरिजन विल बी डन विद इन द सेम टेबल, वो एक ही टेबल के अंदर में होगा। क्लियर ना? तो इस तरह का जहां सिचुएशन पैदा होता है, जो मोमेंट क्रिएट होता है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, सेल्फ ज्वाइन का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, नाउ इट्स सिंटैक्स। अब इसका सिंटैक्स देखिए, हाउ डू वी राइट इट, सिंटैक्स। तो सबसे पहले क्या है, हम लोग का डीक्यूएल कमांड ही चल रहा है, तो डेफिनेटली डीक्यूएल कमांड चलेगा ही चलेगा। सेलेक्ट व्हाट एट्रीब्यूट्स, सेलेक्ट, अब एट्रीब्यूट्स जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। फ्रॉम table 1 and suppose its alias is what, T1, what is this alias? ओके, क्या बनाया मैंने, टेबल 1 का एलियास क्या बनाया मैंने, T1 बनाया। ठीक है, क्योंकि हमें दो तो क्रिएट करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, कॉमा, क्योंकि हमें इसी में कंपैरिजन करना है, मेरे पास कोई दूसरा टेबल तो है नहीं, मेरे पास कोई दूसरा टेबल तो है नहीं, तो टेबल 1 तो रहेगा ही रहेगा और फिर इसका T2 दूसरा एलियास मैंने क्रिएट कर दिया। ओके, दूसरा एलियास मैंने बनाया, इसका नाम क्या है, T2। ओके, ये बात समझ में आई केशव? लुक एट हियर, सेलेक्ट एट्रीब्यूट्स फ्रॉम टेबल 1। अब टेबल कोई एक ही टेबल है हमारे पास है, उसका हम दो एलियास क्रिएट करेंगे। राइट, लुक एट हियर। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया
कि एक टेबल का, इसी टेबल का हमने एक एलियास क्रिएट कर लिया T1 और दूसरा टेबल 1 ही है हमारे पास, और इसका एलियास फिर क्रिएट कर दिया हमने क्या, T2। ठीक है, T1 T2 वेयर, हमने आपको बताया था कि वेयर कीवर्ड का इस्तेमाल जरूर करेंगे। वेयर T1 डॉट सैलरी, अर्थात या टेबल 1 में जो सैलरी है, सपोज करिए फील्ड फील्ड, अब सिंटेक्स लिख रहे हैं तो मैं एग्जांपल में दिखाऊंगा। T1 डॉट फील्ड इक्वल टू T2 डॉट फील्ड। ओके, T1 डॉट फील्ड, ओके, हाँ, कॉलन भी देंगे इसमें। हाँ अभी रुक जाइए। एंड सपोज, हाँ वो तो मैच कर जाएगा, लेकिन किसके बेसिस पे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इसमें जो नाम है हमारा, किसी व्यक्ति के नाम के आधार पे, अ, जो भी हो, आपने एलियास जो बनाए हैं, एलियास जो बनाए हैं, ठीक है, एलियास, एलियास नेम, एलियास नेम, ओके, इक्वल टू, आपको जो भी कंडीशन देना हो वो दे देंगे यहाँ पे। ना लुक एट हियर, फिर से समझिए इसको। मैंने कहा कि मेरे पास टेबल 1 है, तो लुक एट हियर, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, पहले समझ लीजिए फिर लिख लेंगे आप। अब सपोज कीजिए मैंने बताया EID, ई नेम और सैलरी। लुक एट हियर, आई हैव अ टेबल नेम एम्प्लॉय, मेरे पास एम्प्लॉय नाम का एक टेबल है। ओके, अब इसमें मैंने कहा कि EID1, ई नेम के और सैलरी इनकी है 20,000 या सपोज 2,000, नेम है 2, पी के, सैलरी 2,000, नाम है SK, सैलरी 4,000। ओके, सपोज आई हैव अ टेबल और हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे इस टेबल में 2,000 सैलरी प्राप्त करने वाले एम्प्लॉय कौन कौन से हैं, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि केशव के सैलरी के बराबर प्राप्त करने वाला दूसरा एम्प्लॉय और कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्फ ज्वाइन क्रिएट करना पड़ेगा, सेल्फ ज्वाइन करना पड़ेगा, अपना टेबल को खुद से ही मैच कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये उनका सिंटेक्स है। ओके, नोटेड इट, नोट कर लिया। हाँ, और यहाँ से टेबल नोट कर लिया आपने, टेबल छोटा सा सैंपल बना लीजिए। टेबल नहीं होगा तो फिर अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हो पाएगी, तो इसलिए टेबल जरूर बनाएंगे आप। ओके, नाउ लुक एट हियर, नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म द क्वेरी ऑफ सेल्फ ज्वाइन। नाउ सी द टेबल, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि सेलेक्ट व्हाट, उस एम्प्लॉय की सारी डिटेल मेरे को चाहिए। ठीक है, जिसकी सैलरी केशव के सैलरी के बराबर है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या कहा मैंने कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, अब टेबल 1 क्या है भाई, अब टेबल का नाम क्या है आपका, सपोज यहाँ पे मैंने टेबल का नाम दिया है इम, है, ये तो टेबल का नाम है। ठीक, अब इसका मैंने एलियास क्रिएट कर लिया, व्हाट, E1, कॉमा, दूसरा क्या बताया, इम्प E2। ठीक है, क्योंकि टेबल तो है ना, टेबल एक ही है, तो अब इसका जितना एरिया है क्रिएट करने के लिए, नोट करके एक बात और लिख सकते हैं, एनी नंबर ऑफ एलियास कैन बी क्रिएटेड। नाउ लुक एट हियर, नोट करके लिख लेंगे, एनी नंबर ऑफ व्हाट, एलियास, एनी नंबर ऑफ एलियास कैन बी क्रिएटेड। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितना एलियास क्रिएट कर सकते हैं, एनी नंबर ऑफ एलियास कैन बी क्रिएटेड, ये बात याद रखेंगे आप। ठीक है, तो 2 एलियास मैंने बनाया यहाँ पे, इंप का E1 E2। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कंडीशन
where E1 dot salary equal to what? E2 dot salary. ठीक है, E1 dot salary equal to E2 dot salary एंड, तो किसके सैलरी के बराबर? एंड नेम इक्वल टू के। अर्थात मैंने क्या कहा कि के की सैलरी के बराबर, के की एक सैलरी के बराबर जिस एम्प्लॉय की सैलरी है, ठीक है, उसे क्या करिए, उसे हमें रिजल्ट में डिस्प्ले कराइए। क्लियर? एनी डाउट? तो अब क्या हुआ कि ये देखें कि हमारे पास टेबल कितना है, एक। टेबल कितना है, एक है। इम्नाम का ही टेबल है, लेकिन हम उसी फील्ड को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं ना, सैलरी को ही तो कंपेयर कर रहे हैं क्या केसर जी? हाँ आचार्य जी। ओके, क्या करें भाई, सैलरी को ही तो हम कंपेयर कर रहे हैं ना, दूसरा और कोई काम तो हम कर ही नहीं रहे। ये क्या है, ए एलियास है हमारा। तो मैंने आपको ये बताया कि एनी नंबर एलियास कैन बी क्रिएटेड, तो E1 इज ऑल्सो एन एलियास और E2 इज ऑल्सो एन एलियास। ठीक है, तो हमने बताया क्या कि केशव कुमार के सैलरी के बराबर जो भी सैलरी है उसको क्या करिए, आप हमारे डिस्प्ले कराइए। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लगाया, वेयर कीवर्ड। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, सेल्फ ज्वाइन। मतलब कि एक टेबल के ही डाटा वैल्यूज को, एक फील्ड के डाटा वैल्यूज को हम क्या करते हैं, उसे टेबल में कंपेयर करते हैं दूसरे वैल्यू से। तब इस परिस्थिति में हमें सेल्फ ज्वाइन की आवश्यकता पड़ती है। सेल्फ ज्वाइन करने का तरीका क्या बताया मैंने कि सबसे पहले एक टेबल होगा। सेल्फ ज्वाइन हमेशा एक टेबल पे ही होता है परफॉर्म, इसलिए एक टेबल की ही बात होगी। दूसरी बात मैंने क्या बताया कि हम एक ही टेबल को ज्वाइन करना है तो हमें बार बार क्या करना पड़ेगा, उसको उसका एक एलियास क्रिएट करना पड़ेगा, अनदर नेम क्रिएट करना पड़ेगा। फिर मैंने कंडीशन में ये दे दिया कि सर एनी नंबर ऑफ एलियास कैन बी क्रिएटेड, आप जितना चाहे उतना एलियास क्रिएट कर सकते हैं, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद मेरा कंडीशन क्या था, कंडीशन यहाँ पे अलग अलग हो सकता है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि इस सैलरी से ज्यादा, केशव कुमार की सैलरी से ज्यादा किनको किनको सैलरी प्राप्त हो रही है, हम वो भी कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमने इक्वालिटी वाला लगाया है। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, सेल्फ ज्वाइन। समझ में आया? हाँ आचार्य जी। आउटपुट कैसे दिखाएगा इसका? मैंने आउटपुट वही दिखा रहा हूँ। आउटपुट जो आएगा, रिजल्टिंग टेबल जो होगा आपका, वो यहाँ तक क्लियर नहीं, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? नहीं आचार्य। ओके, तो अब यहाँ जो रिजल्टिंग टेबल होगा हमारा, वो देखिए यहाँ पे क्या दिखाएगा। जो रिजल्टिंग टेबल होगा हमारा, आउटपुट जो आएगा वो इस तरह से आएगा, इस राइट। यहाँ पे होगा 1, यहाँ होगा के, यहाँ होगा 2000, ठीक है, यहाँ होगा 2, यहाँ होगा PK, यहाँ होगा 2000। बस जो हमारा वैल्यू आपके वैल्यू से, जो आपकी सैलरी से मैच कर रहा है। अब टेबल में बहुत सारे वैल्यूज हो सकती हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, उससे कोई इशू नहीं है हमको, लेकिन यहाँ जो रिजल्टिंग टेबल होगा हमारा, वो इस तरह से आएगा। अर्थात वो ये दिखाएगा कि सर 2000 सैलरी पाने वाले ये सारे के सारे एम्प्लॉयज, क्योंकि हम सारे फील्ड्स का सिलेक्शन कर रहे हैं ना। ठीक है, तो सारे फील्ड्स हमारे पास आ जाएंगे इस तरह से कि 2000 पाने वाले जो एम्प्लॉयज हैं। अब ये देखिए हमारा ओरिजिनल टेबल ये हो गया कि हमारा व्यू क्रिएट हो गया, अर्थात रिजल्टिंग टेबल हो गया हमारा। यू कैन सी एंड कंपेयर द फील्ड्स ऑफ योर टेबल। तो इसमें डेटा और भी है, लेकिन इसमें वही डेटा एक्सट्रैक्ट होकर आएगा जिसकी सैलरी आपके सैलरी की बराबर है। क्लियर? हाँ आचार्य। कंडीशन ओके, आचार्य जी इसमें और ज़्यादा भी दे सकते हैं ना, जैसे अभी इसमें सिर्फ सैलरी हाँ सिलेक्ट करना था। हाँ बिल्कुल। तो आप दूसरा, मैंने तो बोला ना कि कंडीशन तो अपने अनुसार बदल ही सकते हैं। ये तो एक एग्जांपल है, जैसे मैंने कहा कि केशव कुमार की सैलरी से ज्यादा, ठीक है, सैलरी ग्रेटर देन, ओके, E1 डॉट सैलरी ग्रेटर देन E2
तो मतलब क्या हुआ, कुमार के सैलरी आने वाला व्यक्ति का हमको सैलरी दिखाओ कि कौन कौन सा है, तो उस केस में हमारे पास एक ही रिजल्ट आएगा, हो जाएगा ये हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा SK और ये होगा हमारा 4000, ठीक है ना, इस तरह से क्लियर। तो कंडीशन तो आप अपने अनुसार मोल्ड कर सकते हैं। ओके, एनी डाउट? नहीं है सर। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? और कुछ पूछना है तो पूछिए। नहीं। वन क्लास इज रिमेनिंग फॉर योर डेटाबेस। अभी क्लास और बच जाता है जिसमें हम लोग दो ज्वाइन है, हम लोग उसको देख लेंगे, ठीक है, जिसका नाम है क्या, इक्वी और नॉन इक्वी ज्वाइन, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखिए। टेक केयर एवरीवन, हैप्पी दुर्गा पूजा टू यू।